Jai Siya Ram. Chapter Excretory product and their elimination. Excretion, the process of removal of metabolic waste like ammonia, urea, uric acid, CO2, H2O, lactic acid, creatinine, etc. It also eliminates ions like K plus, H plus, etc. C6H12O6 6 कार्बन है. ग्लाइकोलाइसिस के टाइम टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बना जो कि 3 कार्बन का होता है. ठीक है. फिर उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है जिसे हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो इस टाइम पे ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है. ओके. और C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम में प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP. ठीक है. नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया NH3 यूरिया यूरिक एसिड. नाइट्रोजनस वेस्ट NH3 यूरिया यूरिक एसिड. Ammonotalism, the process of excretion of ammonia is called ammonotalism. NH3 ये highly toxic है, requires large amount of water for its removal. ये radially soluble होता है, मतलब highly soluble है ये. That's why it required large amount of water for its removal. It diffuses out through body surface and gill surface. It is removed as ammonium ion NH4 plus. It is removed as NH4 plus ammonium ion since highly toxic. No storage in body. Kidneys do not play significant role in its removal. Kidneys do not play significant role in its removal. Ammoniotalic organism, animal that excrete ammonia, उसे कहते हैं ammoniotalic organism. ठीक है. एग्जाम्पल boniferous aquatic animals, aquatic amphibian. एग्जाम्पल tadpole, larva of frog, salamander. boniferous aquatic insect जो कि पानी में रहता है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रिमूवल के लिए. डेट्स वाई जो वाटर में रहता है वही सब. Boniferous aquatic insect, aquatic amphibian. Example tadpole, larva of frog, salamander. Okay. अब देखते हैं ureotalism. The process of excretion of urea. Urea ये less toxic है. Less soluble in water. Urea less toxic है, less soluble in water. 1 lakh times less toxic than ammonia. 1 lakh times less toxic than ammonia. 1 lakh times less toxic than ammonia. ठीक है. ये less toxic है, less soluble in water. Due to less toxicity, some amount is stored in the body to maintain osmolarity. Okay. Ureotalic organism that excrete urea, उसे कहते हैं ureotalic organism. Example mammals, terrestrial, amphibian. Example frog, toad. Marine fishes. Example cartilaginous fishes. ये क्या ureotalic. ठीक है. और फिर ammonotalic था, अमोनिया जो कि ज़्यादा वाटर चाहिए था उसे. ठीक है. ureotalic हो गया. In mammals, NH3 and CO2 are converted into urea through urea cycle or ornithine cycle or Krebs-Henselt cycle in liver. टॉक्सिसिटी अमोनिया की सबसे ज़्यादा, उससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक एसिड. अमोनिया की टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम यूरिया, उससे भी कम यूरिक एसिड. तो फिर यहाँ पे इन मैमल्स NH3 अमोनिया एंड CO2 आर कन्वर्टेड इनटू यूरिया थ्रू यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल इन लीवर में होता. यहाँ पे NH2 ग्रुप का डोनेशन होता है. ठीक है. और फिर अमीनो एसिड एस्पेरेटेट. 3 ATP का यूटिलाइजेशन, 4 फॉस्फेट यूटिलाइजेशन. 3 ATP का यूटिलाइजेशन होता है और फिर 4 फॉस्फेट यूटिलाइजेशन. ओके. अब देखते हैं. प्रोटीन्स आर नेवर स्टोर्ड इन आवर बॉडी. प्रोटीन्स परफॉर्म अ लॉट ऑफ फंक्शन इन आवर बॉडी. वंस देयर रिक्वायरमेंट इज ओवर द प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड इन बॉडी. प्रोटीन डिग्रेड इल्ड अमीनो एसिड. तो फिर अमीनो एसिड का यहाँ पे फिर डीएमिनेशन होता. NH2 ग्रुप का डोनेट किया, फिर उसके बाद ये साइकिल चलता ऑर्निथिन साइकिल और फिर से यहाँ पे यूरिया बन गया. ओके. अब देखते हैं Uricotalism, the process of excretion of uric acid. Uricotalism, the process of excretion of uric acid. C5H4N4O3.
list soluble in water, release in the form of pellet or paste. List soluble in water, लिस्ट टॉक्सिक है ये, ठीक है. लिस्ट soluble in water, release in the form of pellet or paste. लिस्ट soluble है, लिस्ट soluble. यूरिक एसिड, ये लिस्ट soluble है. लिस्ट टॉक्सिक, लिस्ट soluble in water, release in the form of paste or pellet. Okay, uricotalic organism that excrete uric acid. Example: reptiles, birds, land snails, and terrestrial insect. Example: cockroach. ये uricotalic organism है. Okay, in human, uric acid also formed via purine metabolism. Uric acid are also formed via purine metabolism. Purine A और G रहता है इसमें, ठीक है. एडेनोसिन डीएमिनेज, देन यहाँ पे फिर इनोसिन बनता है, फिर जेंथीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में ये हाइपोजेंथीन बना, ठीक है. फिर उसके बाद ये जेंथीन बना एंड देन फिर यूरिक एसिड. एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड डिपोजिशन इन जॉइंट, जिसे कहते हैं गाउट. ओके, अब देखते हैं जब ब्लड हेपेटिक आर्टरी से होकर लीवर तक पहुंचता है, जब ब्लड हेपेटिक आर्टरी से ब्लड जो है हेपेटिक आर्टरी से होकर लीवर में पहुंचा. हेपेटिक आर्टरी हाँ, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, तो ये लीवर में पहुंचा. देन उसके बाद यहाँ पे यूरिया फॉर्मेशन हुआ. फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा हेपेटिक वेन के थ्रू. तो फिर लीवर ड्रेन यूरिया into the blood which is living via hepatic vein. The highest concentration of urea is found in the blood of hepatic vein that leaves the liver. तो फिर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हेपेटिक वेन में है, यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. फिर कुछ अदर वेन आकर मिली, उसके बाद कहाँ गई? इन्फीरियर वेना केवा में. फिर उसके बाद इन्फीरियर वेना केवा से फिर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में. उसके बाद फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल, देन फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई ब्लड. एंड देन एओर्टा के थ्रू फिर उसके बाद रीनल आर्टरी में गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट ये डर्टी है, क्यों? क्योंकि इसमें अभी यूरिया प्रेजेंट है. एंड देन किडनी रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड, फिर उसके बाद यूरिन यहाँ से बना दिया. ये यूरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. अब देखिए टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल्स. इनवर्टिब्रेट में सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. ओके, वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन है किडनी, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन से जिसे कहते हैं किडनी. मैनी नेफ्रॉन कंबाइन टू फॉर्म किडनी. इनवर्टिब्रेट्स हो गया. सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे किडनी कहते हैं. मैनी नेफ्रॉन्स कंबाइंस टू फॉर्म किडनी. हैविंग वर्टिब्रेट्स कहते हैं जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम हो, बैकबोन हो से, ठीक है. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और इधर देखते हैं ऑर्गेनिज्म. तो फिर प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लैम सेल्स, ये हो गया प्लैटीहेल्मिन्थस. एग्जाम्पल प्लेनेरिया, रोटिफर्स, सम एनालिड्स. ओके, एंड cephalochordate या एग्जाम्पल एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट. cephalochordate एग्जाम्पल एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट. यहाँ पे नोटोकॉर्ड हेड टू टेल प्रेजेंट है, ठीक है. देखिए रेनेट सेल एच सेप का ही होता है रेनेट सेल. एग्जाम्पल एस्केलमेंथिस, एग्जाम्पल एस्केलमेंथिस में है रेनेट सेल एच सेप का. ओके, नेफ्रीडिया एग्जाम्पल अर्थवॉर्म एंड अदर एनालिड्स. नेफ्रीडिया प्रेजेंट है अर्थवॉर्म एंड अदर एनालिड्स. माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स एग्जाम्पल इंसेक्टल, एग्जाम्पल कॉकरोच. ओके, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड. क्रस्टेशियन एग्जाम्पल प्राउन, क्रैब. ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड एग्जाम्पल क्रस्टेशियन, प्राउन, क्रैब. ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, एराक्निड्स फैमिली. ओके, हेमिकॉर्डेटा प्रोबोसिस ग्लैंड, वर्टिब्रेट्स किडनी. ओके,
अब देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, pair of ureters, urinary bladder and urethra. Okay, kidney are situated between last thoracic, kidney are situated between last thoracic T12 and third lumbar L3 vertebrae. Kidneys are situated between last thoracic T12 and third lumbar, last thoracic T12 and third lumbar L3 vertebrae. Kidney is found in the lower abdominal cavity, kidney is found in the lower abdominal cavity. Okay, kidney कैसा है, reddish brown bean shaped structure, 10 to 12 centimeter length है, 10 to 12 centimeter length है, 5 to 7 centimeter width है, 2 to 3 centimeter thickness है, 12 to 120 to 170 kg weight है इसका, 120 to 170 kg, 120 to 170 kg इसका वेट है. ओके, 120 to 170 kg इसका वेट है. राइट किडनी स्लाइटली लोअर रहता है, क्यों? क्योंकि राइट साइड पे उसके ऊपर यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है, डेट्स वाई राइट किडनी थोड़ा स्लाइटली लोअर प्रेजेंट है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में. ओके, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में, यूरिन फॉर्मेशन हुआ, ये हो गया राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, फिर ये यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर, स्टोरेज ऑफ यूरिन यहाँ होता है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ गया. ये सब आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में. ठीक है, किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजिशन, मतलब बिहाइंड पेरिटोनियम, रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजिशन बिहाइंड पेरिटोनियम. ये आगे का हो गया वेंट्रल और पीछे का इसे कहते हैं डॉर्सल. वेंट्रल और यहाँ पे पेरिटोनियम प्रेजेंट है, पेरिटोनियम के पीछे किडनी प्रेजेंट है, डेट्स वाई से कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल किडनी का पोजीशन है. ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स 11th एंड 12th रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं 11th एंड 12th रिब्स को, प्रोवाइड पार्शियल प्रोटेक्शन टू द किडनी. यस, ये पीछे डॉर्सल साइड पे हो गया वर्टिब्रे और ये फ्लोटिंग रिब्स हो गया जो कि किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, 11th एंड 12th रिब्स. ठीक है, ये हो गया किडनी, ये हो गया किडनी. कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम, ये हो गया किडनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम. यहाँ पे ये किडनी सबसे ऊपर में प्रेजेंट है, रीनल फेसिका, रीनल फेसिका ये आउटर है, रीनल फेसिका, रीनल फेसिका, रीनल फेसिका ये आउटर में है. ठीक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी. ठीक है, ये हो गया रीनल फेसिका, रीनल फेसिका ये आउटर है. फिर इसके अंदर प्रेजेंट होता है एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल ये मिडिल में एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर. रीनल फेसिका सबसे बाहर हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद एडिपोज कैप्सूल एंड देन उसके नीचे आता है रीनल कैप्सूल, ये इनर है, ये ट्रांसपेरेंट है. रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल इनर है, रीनल कैप्सूल सबसे इनर है, ट्रांसपेरेंट है. रीनल कैप्सूल इनर, रीनल कैप्सूल ट्रांसपेरेंट इनर है. रीनल कैप्सूल ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये इनर है. ठीक है, फिर इसके अंदर आता ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला. कॉर्टेक्स ये बाहर है, आउटर लाइटर एरिया, इसका कलर थोड़ा लाइट है, आउटर है ये लाइटर एरिया. ठीक है, फिर ये जो मेडुला है ये इनर डार्क एरिया है. ओके, फिर इधर हो गया बेस और ये हो गया आगे अपेक्स, ये बेस है और ये आगे हो गया अपेक्स. और ये मेडुला इनर डार्क एरिया मेडुला के यहाँ पे आगे में हो गया ये माइनर कैलिक्स 8 to 18 इन नंबर, माइनर कैलिक्स 8 to 18 इन नंबर. और इधर यहाँ पे ये है मेजर कैलिक्स 2 to 3, मेजर कैलिक्स 2 to 3 प्रेजेंट होता है. ठीक है, और यहाँ पे ये माइनर कैलिक्स 8 to 18 इन नंबर, मेजर कैलिक्स हो गया 2 to 3. ओके, उससे पहले ये हो गया. और कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम कहते हैं जो कि पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन मेडुला. कॉलम ऑफ बर्टिनी बड़ा होकर वहाँ तक पहुँच गया ये. कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम, कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम, कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन मेडुला, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन मेडुला. कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम इसे कहते हैं. पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन मेडुला, कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम. ओके, ये क्या मेडुलरी पिरामिड 10 to 12 इन नंबर, मेडुलरी पिरामिड 10 to 12 इन नंबर. और
मेडुलरी पिरामिड 10 to 12 इन नंबर, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड के नीचे में जो यहाँ पे अपेक्स पे है इसे कहते हैं रीनल पैपिला, अपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड, रीनल पैपिला इसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद माइनर कैलिक्स एंड देन मेजर कैलिक्स, फिर उसके बाद आता है रीनल पेल्विस, फनल शेप स्ट्रक्चर, रीनल पेल्विस फनल शेप स्ट्रक्चर, ओके। फिर इसके बाद ये हो गया यूरेटर हो गया ये, ठीक है। अब ये है किडनी, ये हो गया कॉन्वेक्स शेप और इधर है ये कॉनकेव शेप, ये हो गया कॉन्वेक्स और इधर हो गया कॉनकेव शेप, कॉनकेव नोच और इधर है कॉन्वेक्स साइड और इधर है कॉनकेव नोच, ओके। ये यूरेटर है, रीनल आर्टरी और ये हो गया रीनल आर्टरी, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस यूरिया इंटर करता है और ये रीनल वेन है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस नो यूरिया प्रेजेंट होता है इस ब्लड में, ये यहाँ से रिलीज होता रीनल वेन से, ओके। और फिर हो गया यूरेटर, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स साइड था और इधर क्या ये कॉनकेव है, कॉनकेव नोच, यहाँ पे रीनल हाइलम इसे कहते हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर सब कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे, यूरेटर मेडुलरी पिरामिड था 10 to 12, ठीक है। यहाँ पे रीनल पैपिला हो गया, फिर यहाँ पे ये रीनल पेल्विस फनल शेप स्ट्रक्चर, ओके। अब देखते हैं यूरेटर मस्कुलर डिस्टेंसिबल ट्यूब, डिस्टेंसिबल मतलब स्ट्रेचेबल, मस्कुलर डिस्टेंसिबल ट्यूब, ये यूरेटर हो गया। 20 to 30 सेंटीमीटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ऑब्लिक ओपनिंग, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरोथेलियम जिसे कहते हैं। मस्कुलर स्ट्रेचेबल ट्यूब 25 to 30 सेंटीमीटर, 25 to 30 सेंटीमीटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ऑब्लिक ओपनिंग, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरोथेलियम से यूरोथेलियम कहते हैं, ओके। क्योंकि मस्कुलर स्ट्रेचेबल ट्यूब 25 to 30 सेंटीमीटर, यू गया यूरेटर, ठीक है। कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, 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 ऑब्लिक ओपनिंग यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरोथेलियम है, ठीक है। अब देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है, ये एक ही है, ओके। मस्कुलर डिस्टेंसिबल बैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टोरेज ऑफ यूरिन 700 to 800 ml, ओके। यहाँ पे ये यूरेटर हो गया, ठीक है। ये एंटीरियर साइड है और इधर ये पोस्टीरियर साइड है, ये सेरोसा, ये ऊपर वाला लेयर हो गया सेरोसा और इसके बीच में यहाँ पे ये डिट्रूसर मसल्स है, डिट्रूसर मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आउटर है, सर्कुलर मसल्स मिडल में है और सबसे इनर हो गया लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, डिट्रूसर मसल्स ये मिडल में है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये आउटर है, सर्कुलर हो गया मिडल, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल हो गया इनर, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आउटर, फिर सर्कुलर मसल्स मिडल, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इनर, ये हो गया सेरोसा ये हो गया, ठीक है। और ये है एडवेंटिशिया, ये इधर है एडवेंटिशिया, ओके। और ये सबसे अंदर में प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्लस लमाइना प्रोप्रिया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये इनर में है, ओके। यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये हो गया ओपनिंग ऑफ यूरेटर, यहाँ पे एडवेंटिशिया है। इंटरनल स्फिंक्टर ये इनवॉलंटरी होता है, बट यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये वॉलंटरी है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस और यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस, ओके। अब देखते हैं मिक्चुरेशन, रिलीज ऑफ यूरिन, मिक्चुरेशन क्या है, रिलीज ऑफ यूरिन, इट इज ड्यू टू मिक्चुरेशन, release of urine, it is due to micturition reflex, it is voluntary process when urinary bladder fills around 200 to 400 ml, stress receptor activate हो जाता है और फिर
नर्व्स को सिग्नल जाता, फिर ये सीएनएस के पास मैसेज पहुंचाता। ओके, फिर सीएनएस, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, फिर ये सीएनएस का दो पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा और दूसरा जो कि डायरेक्ट ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास मैसेज पहुंचाता। मेडुला ऑब्लोंगाटा के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मोटर नर्व के थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसमें दो पार्ट्स आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिस टाइम रेस्टिंग कंडीशन में है तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, जैसे रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये मैसेज भेजता है। और इधर क्या तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास स्केलेटल मसल्स का कुछ फंक्शन कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स का फंक्शन कंट्रोल करता है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये जैसे ही रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर होता है तो उस टाइम पे ये इनएक्टिव हो जाता, इनएक्टिव हो गया तो फिर ये छोड़ दिया, मतलब रिलीज ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, देन उसके बाद रिलीज ऑफ यूरिन मिक्चुरेशन अकर। ओके, अगर सिंपैथेटिक डिवीज़न है अगर सिंपैथेटिक डिवीज़न है मतलब इमरजेंसी कंडीशन है तो फिर रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूसर मसल्स और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है तो फिर उस टाइम पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट होता और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, डेट्स वे इमरजेंसी कंडीशन में यूरिनेशन नहीं हो रहा। ओके, अब देखते हैं यूरेथ्रा कॉमन पैसेज ऑफ यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज फॉर सीमन एंड यूरिन, यूरिनोजेनाइटल अपार्चर इसलिए कहा जाता है इसे, ओनली फॉर मेल्स। ओके, 20 सेंटीमीटर मेल में है, 5 टाइम्स देन फीमेल, 20 सेंटीमीटर मेल में होता है इतना लंबा होता, 20 सेंटीमीटर इन मेल, 5 टाइम्स देन फीमेल, और 4 सेंटीमीटर फीमेल में। तो ये सॉर्टेड है, प्रोन टू यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इस किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन। Structure of nephron, uriniferous tubule, structure of nephron, uriniferous tubule, functional unit of kidney, नेफ्रॉन को कहा जाता है, नेफ्रॉन का दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इस किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन, इस किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को कहते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाँ एनसीईआरटी में ये वर्ड है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन इसमें दो पार्ट आता है, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस ये हो गया ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ओके, फिर उसका रीनल ट्यूब्यूल इसमें आता है बॉमेंस कैप्सूल, सबसे पहले आगे जिससे कहते हैं जो कि है डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, बॉमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर उसका लूप ऑफ हेनले, हेयर पिन लूप एकदम पतला सा हेयर पिन की तरह इतना पतला है। उसके बाद फिर डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड देन बस हो गया। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में बस दो ही पार्ट आता है, एक हो गया ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस में आ गया ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज और फिर रीनल ट्यूब्यूल में बॉमेंस कैप्सूल, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी। ओके, रीनल कॉर्पसल और माल्फिगियन बॉडी जिसे कहते हैं रीनल कॉर्पसल कैप्सूल की तरह, इसमें ये दोनों आता है, रीनल कॉर्पसल और जिसे माल्फिगियन बॉडी कहते हैं, इसमें आता है ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल। रीनल कॉर्पसल इसमें आ गया ये बॉमेंस कैप्सूल, इसमें आ गया बॉमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, माल्फिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल में। तो सबसे पहले एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, एफरेंट आर्टेरियोल जिसका डायमीटर थिक होता है इन कंपैरिजन टू इफरेंट आर्टेरियोल, इसका डायमीटर थिक है, ज़्यादा मोटा है तो चौड़ा है, यहाँ से ब्लड इंटर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ग्लोमेरुलस, इससे यहाँ पे ये आया फिल्ट्रेट में। ओके, ये बॉमेंस कैप्सूल, ये कॉर्टेक्स में, फिर बॉमेंस कैप्सूल ये हो गया, और ये आधा की ये ऊपर है, इधर हो गया ये सब कॉर्टिकल रीजन में, और फिर जो इधर अंदर है वो हो गया मेडुला में। ठीक है,
तो ये कहाँ है, ये कॉर्टेक्स में, वोमेंस कैप्सूल, और फिर ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इतना था कॉर्टेक्स में, ठीक है। फिर इसके बाद ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये दोनों कहाँ है, मेडुलर रीजन में, ओके। फिर उसके बाद डिसिटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो है कॉर्टेक्स में, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, ठीक है। और इधर इफरेंट आर्टेरियो से जो ये निकलता है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इसे कहते हैं। ये पूरे इस तरह नेटवर्क की तरह इस पर बिछा हुआ रहता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ओके। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये इस पे से बिछा हुआ है, ओके। ये हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, ये डिसेंडिंग असेंडिंग, ठीक है। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर कलेक्टिंग डक्ट, और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है, फिर ये बाद में ब्रांच, और ये है क्या, ब्रांच ऑफ रीनल वेन है, ठीक है। ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ओके। अब देखते हैं कॉर्टेक्स किडनी, किडनी के जो है कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या आता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आ गया, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ठीक है। और फिर मेडुलर रीजन में ओनली लूप ऑफ हेनले, इन बोथ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, दोनों तरह के नेफ्रॉन में सेम यही होता है। देखते दोनों कौन कौन से, एक हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, रीनल कॉर्पसल इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स नियर किडनी वॉल, known as renal capsule, renal corpuscle is present renal corpuscle is present in cortex near kidney wall, known as renal capsule। और इधर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये यहाँ पे रीनल कैप्सूल इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स नियर कार्डिको मेडुलरी जंक्शन, नियर कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन, ये यहीं पे इसके पास होता है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80 to 85% नेफ्रॉन है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ये है 15 to 20% नेफ्रॉन, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये स्मॉलर है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन स्मॉलर है, और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ये लॉन्गर है, लार्जर है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले शॉर्टर होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले यहाँ पे शॉर्टर है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। और फिर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में यहाँ पे लूप ऑफ हेनले लॉन्गर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन यहाँ पे वॉसा रेक्टा एब्सेंट या फिर ये कह लो हाईली रिड्यूस्ड है, बट जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में यहाँ पे वॉसा रेक्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में फंक्शन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन फंक्शन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, बट जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन फंक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, जक्स्ट्रा वाला का ये लॉन्गर होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले लॉन्गर होता है और ये ज़्यादा बड़ा भी होता है, 15 to 20% है, ठीक है। अब देखते हैं दोनों का स्ट्रक्चर। इसका तो कॉर्टिकल वाला का तो अभी हम लोग देखे थे, एफरेंट आर्टेरियोल से आता है, ओके। फिर उसके बाद फिल्ट्रेट कहाँ चला गया, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, एंड देन पीसीटी, एंड देन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड देन डिसिटी, ओके। फिर कलेक्टिंग डक्ट में चला गया, और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, ओके, जो कि इधर इफरेंट आर्टेरियोल से कनेक्ट है और इधर रीनल वेन से, ओके। अब देखते हैं ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हो गया, ये एफरेंट आर्टेरियोल से आता है, ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल से आता है। फिर उसके बाद ये ग्लोमेरुलस हो गया, फिर ये कहाँ गया, बोमेंस कैप्सूल में गया, एंड देन ये बोमेंस कैप्सूल में जाने के बाद पीसीटी, एंड देन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओके। फिर उसके बाद थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओके। फिर उसके बाद डीसीटी में, ठीक है। ये यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल और फिर ये डीसीटी का पार्ट रहता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाता है एफरेंट आर्टेरियोल और फिर डीसीटी, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो इफरेंट आर्टेरियोल जो उधर से निकल रहा है, फिर इफरेंट आर्टेरियोल
ये एक पार्ट जो इसके ऊपर फैला हुआ है जिसे कह रहे हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। और फिर दूसरा हो गया ये एक पार्ट हो गया, और इससे बगल से जस्ट यहीं से निकलता है, इसे कहते हैं यू सेप वासा रेक्टा। यू सेप है ये, यू सेप वासा रेक्टा। Minute vessels of peritubular capillaries that runs to loop of Henle. Minute vessel of peritubular capillaries. You get U shape vasa recta, U shape vasa recta. Minute vessel of peritubular capillaries. You get U shape vasa recta, U shape vasa recta. Minute vessel of peritubular capillaries. Minute vessel of you get U shape vasa recta, U shape vasa recta. Minute vessel of peritubular capillaries that runs parallel to the loop of Henle, U shape vasa recta है, ठीक है। ये हो गया, और ये था कॉर्टिको-मेडुलरी जंक्शन, ठीक है। afferent arteriole, a branch of afferent arteriole branch of renal artery। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बट ये इम्प्योर है, तो अब इससे प्यूरिफिकेशन हो गया और ऑक्सीजन भी मिल गया सबको। तो अभी जो ये अब जा रहा है बाद में, तो फिर ये जाता है, ये इफरेंट वाला जो है, इफरेंट वाला जाता है इससे रीनल वेन से। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट्स व्हाई वेन में जा रहा है, ओके। juxtaglomerular apparatus, JGA, juxtaglomerular apparatus, JGA, it consists of JG cells, juxtaglomerular cells, it consists of JG cells, juxtaglomerular cells, modified smooth muscles of afferent arteriole, modified smooth muscles of afferent arteriole, plus macula densa, denser cell of DCT, columnar cells, ये क्या बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। juxtaglomerular cells, GG cells, juxtaglomerular cells, ये है क्या, modified smooth muscles of afferent arteriole, afferent arteriole का स्मूथ मसल्स मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। और फिर DCT का modified smooth muscles of afferent arteriole plus macula densa, ये क्या है, denser cells of DCT, columnar cells। और ये मैक्यूला डेंसा, ये जो है सॉल्ट सेंसिंग सेल्स है, Na+ को ये सेंस कर सकता, ओके। तो फिर यहाँ पे juxtaglomerular cells, ये बना afferent arteriole प्लस DCT, modified smooth muscles of afferent arteriole, और फिर DCT का ये मैक्यूला डेंसा कॉलमनार सेल्स में जो कन्वर्ट हो गया, ओके। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ JGA। इफ glomerular filtration rate decreases, JG secretes renin, if glomerular filtration rate decreases, GFR, glomerular filtration rate decreases, JGA secretes renin, it increases BP or glomerular filtration, if GFR डिक्रीज, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हो गया है, ठीक है, मतलब बीपी कम हो गया है या तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, डेट्स वाई तो GFR कम हो गया है, तो इस टाइम क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ मैक्यूला डेंसा, देन JG सेल्स, देन JGA secretes renin, RENIN है, ठीक है। देन JGA secretes renin, it increase ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, डेट्स वाइज से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इट सिक्रेट्स रेनिन, आगे इसका फंक्शन पढ़ेंगे। इट सिक्रेट्स रेनिन, इट इंक्रीजेस बीपी और GFR एंड ऑल्सो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इट सिक्रेट्स इराथ्रोपोइटिन, इराथ्रोपोइसिस हो रहा, तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ RBCs हो रहा। इट सिक्रेट्स इराथ्रोपोइटिन, इराथ्रोपोइसिस हो रहा, मतलब इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ RBCs हो रहा, ओके। इट सिक्रेट्स कैल्सिट्रायोल,
Calcitriol, it secretes the calcitriol, active form of vitamin D. It secretes the calcitriol, active form of vitamin D. कैल्शियम 2+ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा. It secretes the calcitriol, it secretes the calcitriol, it secretes the calcitriol, active form of vitamin D. That's why कैल्शियम 2+ कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता. ओके, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया. इरेथ्रोपोइसिस, आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो रहा. ओके, अब देखते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यहाँ पे हो गया ये एफरेंट आर्टेरियोल और इधर है इफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल से गया और ये ग्लोमेरुलस है. प्लाज्मा प्रोटीन प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये रिमेन रह गया ब्लड में. और क्या क्या आया फिल्ट्रेट में? H2 आया, अमाइनो एसिड, आयंस, वाइटामिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब फिल्ट्रेट में आ गया. ओके, तो यहाँ पे 3 लेयर रहता है. सबसे पहला लेयर हो गया इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज रहता है और फिर ब्लड कैपिलरीज में इंडोथेलियम हो गया, तो मतलब इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. और यहाँ पे क्या होता है? हैज़ फेनिस्ट्रेशन मतलब चालनी की तरह होता. हाँ, फिर उसके बाद यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. एंड देन उसके बाद पोडोसाइट ऑफ बॉमेंस कैप्सूल. ये तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का हो गया, इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. फिर यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन पोडोसाइट्स ऑफ बॉमेंस कैप्सूल. हाँ, वो कैपिलरीज है तो वहाँ पे इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन पोडोसाइट्स ऑफ बॉमेंस कैप्सूल. ये तीनों मिलके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाता. इन तीनों को मिलने से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनता. ठीक है, ये 2 तरह का है बॉमेंस कैप्सूल. इसमें 2 तरह का लेयर हो गया. एक हो गया पैराइटल लेयर और दूसरा हो गया विसरल लेयर. विसरल लेयर जो है यहीं पे पोडोसाइट्स प्रेजेंट है. ये क्या होता? मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामस सेल्स है पोडोसाइट. यहाँ पे पेडिसल और यहाँ पे नीचे में फिल्ट्रेशन सल्ट और सिल्ट पोर है. ओके, ये हो गया पेडिसल, ये पोडोसाइट है. ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल 2 तरह का. एक ही हो गया विसरल लेयर, यहाँ पे पोडोसाइट प्रेजेंट है विसरल लेयर. और एक ये पैराइटल लेयर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है पैराइटल में. ठीक है, इन दोनों को मिला के कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल. अब उसके बाद देखते हैं ये ब्लड जब पास करता फेनेस्ट्रा ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसकी इधर ही रह गया. लार्ज प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन रिमेन्स इन ब्लड और रिमेन्स इन ग्लोमेरुलस. ठीक है, और लार्ज प्रोटीन भी वापस आ जाता. बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास करके आया मीडियम साइज प्रोटीन. ठीक है, फिर सिल्ट पोर ऑफ पोडोसाइट बॉमेंस कैप्सूल फिल्ट्रेशन करता. देन यहाँ पे एल्ब्यूमिन बसा पाता लेस देन 1% प्रोटीन. ओके, अब देखते हैं पैसेज ऑफ यूरिन. कॉर्टेक्स था, यहाँ पे पीसीटी में आया. पीसीटी के बाद ये हो गया कॉर्टेक्स और इधर हो गया मेडुला. ठीक है, पीसीटी में आया एंड देन फिर लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट. मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्स टू डक्ट ऑफ बेलिनी. मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्स टू डक्ट ऑफ बेलिनी. मैनी कलेक्टिंग डक्ट converges to duct of Bellini. Collecting duct. Many collecting duct converges to duct of Bellini. कलेक्टिंग डक्ट हो गया ये. ठीक है, फिर डक्ट ऑफ बेलिनी है ये. मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्जेज टू डक्ट ऑफ बेलिनी से कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, जहाँ बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट आके मिलके बनता है. डक्ट ऑफ बेलिनी कन्वर्जिंग टू रीनल पैपिला. कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्जेज टू डक्ट ऑफ बेलिनी. कन्वर्जिंग ऑफ रीनल पैपिला, ये डक्ट ऑफ बेलिनी जो है कन्वर्जिंग ऑफ रीनल पैपिला ये वहाँ पे. ठीक है, फिर ये डक्ट ऑफ बेलिनी ये सब कहाँ है? अच्छा, ये यहाँ पे जो रीनल पैपिला है,
हाँ शायद टेस्ट में आया था, कन्वर्जिंग टू रीनल पैपिला। हाँ डक्ट ऑफ बेनली कहाँ पे कन्वर्स कर रहा, तो रीनल पैपिला है यहाँ पे, तो हाँ ठीक है सही है। सबसे पहले यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्स टू डक्ट ऑफ बेलिनी। ओके, फिर उसके बाद डक्ट ऑफ बेलिनी कन्वर्स टू रीनल पैपिला जो कि अपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड है। हाँ सही है। मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्स डक्ट ऑफ बेलिनी, उसके बाद फिर डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ पे, कन्वर्जिंग टू रीनल पैपिला। ओके, जो कि अपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया माइनर कैलिक्स। फिर उसके नीचे आता यहाँ पे फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेट को यूरिन बोलते हैं माइनर कैलिक्स से। ठीक है, फिर उसके बाद मेजर कैलिक्स एंड देन रीनल पैल्विस फिर उसके बाद यूरेटर, रीनल पैल्विस फिर यूरेटर, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर। रीनल पैल्विस जो कि फनल शेप स्ट्रक्चर है। हाँ रीनल पैल्विस उसे ही कहते हैं, रीनल पैल्विस फनल शेप स्ट्रक्चर। हाँ सही है। रीनल पैल्विस फिर उसके बाद यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा एंड देन बॉडी के आउटसाइड। ओके, यूरिन फॉर्मेशन इट अकर्स इन 3 स्टेप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, tubular reabsorption, tubular secretion. It occurs in 3 steps. Glomerular filtration. During filtration, plasma enter into capsular space except large plasma protein. Glomerular filtration. During filtration, during filtration, plasma enter to capsular space. Glomerular filtration, during filtration, plasma enter into capsular space. Glomerular filtration, during filtration, plasma enter into capsular space except large protein. फिर उसके बाद tubular reabsorption and third tubular secretion. इधर हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, इधर है इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ये रीनल कैप्सूल हो गया, रीनल कॉर्पसल, ये कैप्सुलर स्पेस। ओके, अब देखते हैं सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ पे GHP माइनस BCOP प्लस CHP, ये इतना सारा चीज़ है। सबसे पहले देखते हैं GHP क्या होता है। GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये पॉजिटिव प्रेशर होता है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज। ये कितना है 55 mmHg है। GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP glomerular hydrostatic pressure exerted by the blood on the wall of glomerular blood capillaries, ये पॉजिटिव प्रेशर है, ये 55 mmHg। ओके, फिर उसके बाद BCOP blood colloidal osmotic pressure, BCOP blood colloidal osmotic pressure exerted by प्लाज्मा प्रोटीन, ये है 30 mmHg, ये नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर GHP माइनस BCOP प्लस CHP। हाँ, और इसमें क्या हो गया, ये तो हो गया BCOP पर लिया ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन, ये जो इधर है ये नहीं जाना इधर, ये नेगेटिव प्रेशर। और उसके बाद हो गया CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerted by the filtrate already present in the capsular space 15 mmHg।
pressure exerted by the filtrate, pressure exerted by the filtrate, pressure exerted by the filtrate already present in the capsular space of 15 mm Hg. ये नेगेटिव लगा रहा, ठीक है. तो फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो गया, GHP माइनस BCOP प्लस CHP. 45 माइनस 30 प्लस 15, 55 माइनस 45 ये हो गया 10 mm Hg, अप्रॉक्स 10 mm Hg. ये हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल. ये उधर हो गया प्लाज्मा प्रोटीन, इधर हो गया इफरेंट आर्टेरियोल, ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ये PCT. ओके, देखते हैं CHP. CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक, CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर एक्स, ये तो हो गया. रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट. रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट. रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट. रीनल है यहाँ पे, रीनल इस वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट. अच्छा, रीनल ब्लड फ्लो, हाँ तो रीनल मतलब किडनी हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, पर मिनट, पर मिनट है, याद ध्यान देना. वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट 1100 से 1200 ml पर मिनट, 1100 से 1200 ml पर मिनट, मतलब 1/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. वेंट्रिकल से पर मिनट आता था शायद 5 लीटर के अप्रॉक्स, तो ये इस कितना 1/5 है, 1100 से 1200 ml पर मिनट, मतलब 1/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. ब्लड 55% प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ब्लड में क्या है, 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है. रीनल ब्लड फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो 625 ml पर मिनट. रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो 625 ml पर मिनट. हाँ, क्योंकि इसमें मतलब प्लाज्मा में तो ज़्यादा पानी रहता है, फ्लो तो यही करता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो ऐसे भी नहीं पास हो पाता है, मतलब हाँ 625 ml पर मिनट है, ये हुआ प्लाज्मा फ्लो, ठीक है. अब देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर वो जो है ग्लोमेरुलस, ठीक है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट. अगर इसके अप्रॉक्स देखा जाए तो होता है 180 लीटर पर डे, मतलब 180 लीटर तो बहुत ज़्यादा है. 99% और 99% of this is reabsorbed in tubular protein, sorry in tubular portion. 99% of this reabsorbed in tubular portion, tubular portion में absorb हो जाता है, reabsorb हो जाता है. हाँ, तभी तो यूरिन 1 to 1.5 लीटर पर डे आता है. अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट है, 125 ml पर मिनट है, तब तो 180 लीटर पर डे होना चाहिए था यूरिन, बट ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है. ओके, तो फिर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट फ्रैक्शन कितना हुआ, GFR अपॉन RPF इंटू 100 कितना आता है, 50 to 20%, 50 to 20%. BP कम है, BP कम है मतलब GHP कम है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है मतलब GFR कम है, तो फिर उस टाइम यूरिन आउटपुट भी कम होगा. हाँ, क्योंकि ब्लडिंग कम है, ठीक है. अब देखते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये हो गया PCT, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. पहला ये हो गया PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर PCT. ब्रश, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, माइक्रोविलाई जिसे कहते हैं. इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन PCT, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन PCT. ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, माइक्रोविलाई. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं. सबसे पहला PCT, PCT ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पे माइक्रोविलाई है प्रेजेंट, ठीक है. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है. इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. 70 to 80% is 70 to 80% reabsorption of electrolytes and maximum water passively.
पीसीटी यहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है फॉर इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर पैसिवली अकर हेयर। नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का भी यहीं पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज Na प्लस अमाइनो एसिड, इसका एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज Na प्लस अमाइनो एसिड, ग्लूकोज Na प्लस अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज Na प्लस अमाइनो एसिड्स, इसका पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, ओके। Cl माइनस SCO3 माइनस, अरे यार ग्लूकोज Na प्लस अमाइनो एसिड इसका एक्टिवली होता है, ग्लूकोज Na प्लस अमाइनो एसिड इसका एक्टिवली होता है। और फिर Cl माइनस HCO3 माइनस इसका पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, ओके। अब देखते हैं लूप ऑफ हेनले अप्रॉक्स 5% रीअब्जॉर्प्शन अकर फ्रॉम हेयर। मिनिमम एब्जॉर्प्शन अकर असेंडिंग लिम्ब, मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम होता। डिसेंडिंग में देखते हैं, डिसेंडिंग क्या है, परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, मेक फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि ये परमिएबल टू वाटर है तो वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर, impermeable to electrolyte, permeable to water, descending limb permeable to water, descending limb जो है वो permeable to water होता है, ठीक है। और फिर impermeable to electrolytes, makes filtrate hypertonic, ये क्या डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब वाला परमिएबल टू वाटर होता है, ठीक है। और इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, तो सारा पानी निकल गया तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा बचा है, हाइपरटोनिक, ओके। मतलब फिल्ट्रेट कैसा बचा, हाइपरटोनिक। असेंडिंग में क्या होता, ये परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट और इम्परमिएबल टू वाटर है, तो फिर यहाँ पे सारा इलेक्ट्रोलाइट निकल गया तो अब कैसा फिल्ट्रेट बचा है, हाइपरटोनिक, ओके। अब देखते हैं पीसीटी है, पीसीटी में आइसोटोनिक रहता है, रिमेंस सेम इन पीसीटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ओके। जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आते हैं तो यहाँ पे ये परमिएबल है वाटर का, तो वाटर यहाँ से रिलीज हो गया, तो अब यहाँ पे हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है। फिर जब इधर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये सिंपल स्क्वैमस का बना है, तो यहाँ पे NaCl पैसिवली बाहर आ रहा, क्यों? क्योंकि थिन है, पतला है, बट ऊपर में जब जाते हैं, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पे एक्टिवली NaCl बाहर आता है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मोटा है, डेट्स वाई एनर्जी खर्च होती, ओके। और फिर अब जब वो यहाँ से वाटर तो अंदर ही रह रहा, बस NaCl निकल रहा, तो अब ये हाइपोटोनिक हो चुका है, फिल्ट्रेट, ओके। अब देखते हैं डिसिटी में 10 to 15% और डिसेंडिंग में 10 to 15% रीअब्जॉर्प्शन होता है, 10 to 15%। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है, ठीक है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर, हाँ डीसीटी में तो कंडीशनल ही होता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर, SCO3 माइनस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, SCO3 माइनस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, H2O का NaCl का, H2O और NaCl का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, ओके। और यहाँ पे सिक्रेशन होता है K+ और H+ का, K+ और H+ का सिक्रेशन हो रहा है डीसीटी में, ठीक है। पीसीटी देखते हैं, पीसीटी में SCO3 माइनस का एब्जॉर्प्शन हो रहा, रीअब्जॉर्प्शन NaCl का, H2O का, न्यूट्रिएंट्स K+ ओनली फ्रॉम पीसीटी, ओके। H+ और NS3 नाइट्रोजनस वेस्ट, इसका यहाँ पे सिक्रेशन होता है H+ और NS3 का, ठीक है, पीसीटी में। और डीसीटी में K+ और H+ का, ओके। H2O यहाँ से रिलीज हो रहा है, यहाँ से NaCl, ये जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है, थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ से H2O निकल रहा, हाँ, क्योंकि ये परमिएबल टू वाटर होता है और इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। और फिर ये हो गया डिसेंडिंग वाला, और असेंडिंग वाला ये परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट और इम्परमिएबल टू वाटर, ओके। और फिर कुछ यूरिया ये कलेक्टिंग डक्ट से निकल के कहाँ जा रहा,
असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैमिली में। ओके, अब देखते हैं डीसीटी। डीसीटी यहाँ पे डिहाइड्रेशन जब हो जाता, मतलब जब वाटर की कमी है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेशन होता, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेशन एंड देन मैसेज पहुंचता हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस थर्स्ट सेंटर है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस फिर मैसेज भेजता पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये एडीएच रिलीज करवाता, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये मैसेज फिर एडीएच क्या करता, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, डेट्स वाई लेस यूरिन फॉर्मेशन हो रहा, तो फिर से वाटर मेंटेन हो जाएगी बॉडी में। जब डिहाइड्रेशन होता तो फिर ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेशन हुआ, ये मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो ही चीज़ बनता है, एडीएच और फिर वो ऑक्सीटोसिन। यस, एडीएच को ही कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कहते हैं वैसोप्रेसिन। हाँ, एडीएच फिर क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब देखते हैं दूसरा, जब डिहाइड्रेशन होता है तो फिर जीएफआर कम हो चुका है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो गया, देन मैक्यूला डेंसा एक्टिवेट हो जाता और फिर जेजी सेल्स के पास मैसेज भेजता मैक्यूला डेंसा एक्टिवेट हो चुका है, और ये मैसेज भेजा जेजी सेल्स के पास। जेजी सेल्स रेनिन बनवाया एंड देन रेनिन क्या करवाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। रेनिन क्या करवाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ये एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता। हाँ, एल्डोस्टेरॉन ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। यस, 3 तरह का बनाता था ना। यस, तो फिर हो गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता एल्डोस्टेरॉन एंड देन एल्डोस्टेरॉन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2O फ्रॉम डीसीटी। एल्डोस्टेरॉन ये क्या करवाता, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2O फ्रॉम डीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2O, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2O फ्रॉम डीसीटी, reabsorption of NaCl and H2O from DCT, reabsorption of NaCl and H2O from DCT, reabsorption of NaCl and H2O, reabsorption of NaCl and H2O from DCT। ये सिर्फ और सिर्फ DCT से करवा रहा, ठीक है। अब देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कर रहा था, कलेक्टिंग डक्ट ये करवाता वाटर। कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एडीएच यहाँ से कंडीशनल होता, और कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एडीएच कंडीशनल होता है, ठीक है। फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएटिनिन H+ K+ एटसेट्रा, H+ फॉर पीएच बैलेंस और फिर K+ सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ठीक है। अब देखते हैं in PCT secretion of urea, H+ ion, NH4+ ion, creatinine occur in PCT ये हो गया PCT, इधर हो गया DCT, ठीक है। in PCT secretion of urea, H+ ion, NH4+ ion, creatinine occur, और फिर in DCT and collecting duct, DCT में H+ K+ और NH3, H+ K+ NH3, और collecting duct में K+ and H+ ion, ओके। और फिर PCT secretion of urea, H+ ion, NH4+ ion, creatinine occur, ओके। ब्लड ऑस्मोलरिटी 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, यूरिन 1 to 1.5 लीटर पर डे, यूरिन 1 to 1.5 लीटर पर डे प्रोड्यूस होता। pH 6.0 स्लाइटली एसिडिक, यूरिन पर डे 25 to 30 ग्राम, यूरिया एक्सट्रैक्टेड
out from body per day. 25 to 30 gram urea extracted out from body. यूरिन हो गया 1 to 1.5 लीटर पर डे. यूरिन हो गया 1 to 1.5 लीटर पर डे. pH 6 slightly acidic. Per day 25 to 30 gram urea extracted. Per day 25 to 30 gram urea extracted out per day from body. Sorry, per day 25 to 30 gram urea extracted out from body. 25 to 30 gram urea. Okay. Creatinine, uric acid and excess ions also removed. लाइट येलो कलर्ड होता. यूरोक्रोम प्रेजेंट है, यूरोब्लिन प्रेजेंट है. ओके, अब देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ concentrated urine through counter current mechanism and RAS mechanism. RAS ये ADH में मेन बनता है. ठीक है. और juxta medullary nephron works नेवर ऑपरेट. यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ही वर्क करता है. नेवर ऑपरेट्स इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ओके, और ये कितना टाइम्स कॉन्सेंट्रेट 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर देता है यूरिन को. ओके, ऑपरेट्स ओनली व्हेन H2O intake is very low. Otherwise when H2O intake is good, cortical nephron function make normal dilute urine. ओके, काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपोजिट डायरेक्शन. काउंटर मतलब ये होता है ऑपोजिट डायरेक्शन. इसमें दो चीज़ काम कर रहा है. एक हो गया सबसे पहला लूप ऑफ हेनले जिसका काम है मल्टीप्लायर का काम है लूप ऑफ हेनले. ओके, फिर उसके बाद वासा रेक्टा ये एक्सचेंज का काम करता है. ठीक है. काउंटर करंट फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिप में ऐसे भी उल्टा चल रहा है और फिर लूप ऑफ हेनले और ये वासा रेक्टा इसमें ऑपोजिट चल रहा है. ठीक है. सबसे पहले एफरेंट आर्टेरियोल से आया. ठीक है. ये इधर कॉर्टिकल है और इधर मेडुला रीजन है. कॉर्टेक्स और इधर क्या आउटर मेडुला और इधर सबसे नीचे हो गया इनर मेडुला. ओके, ठीक है. तो अब देखते हैं कॉर्टेक्स में ये यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल से आया फिल्ट्रेट. एफरेंट आर्टेरियोल से आया. ठीक है. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू ये बॉमेंस कैप्सूल तक आया. अभी इसमें 300 मिली ऑस्मोल है. पीसीटी में ये तो सेम रहता है. ठीक है. नो ओवरऑल चेंज इन ऑस्मोलरिटी ऑफ फिल्ट्रेट इन पीसीटी फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू ब्लड और ब्लड प्लाज्मा. तो यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है. ओके, फिर उसके बाद जैसे ही नीचे जाते हैं मतलब आउटर मेडुला में इंटर किए. देन उसके बाद ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ये वाटर के परमिएबल होता है और फिर इलेक्ट्रोलाइट के इम्परमिएबल होता है. तो यहाँ से वाटर निकलना स्टार्ट हुआ. वैसे सबसे पहले जो काम होता है ये सबसे पहला काम स्टार्ट होता है यहाँ से. ये हो गया डिसेंडिंग असेंडिंग से जैसे ही पानी की कमी हो गई. ठीक है. तो फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यहाँ से क्या करता है ये परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के और इम्परमिएबल होता है वाटर के. तो यहाँ से ये NaCl बाहर कर रहा है तो यहाँ का सॉल्टी कंडीशन हो चुका है. ठीक है. ये यहाँ से बाहर करते गया NaCl तो बाहर करके पहले से रखा है. फिर जब यहाँ से ये आता है तो यहाँ से पानी निकल रहा है धीरे धीरे. ऑलरेडी बात है कि NaCl प्रेजेंट है तो यहाँ से वाटर आ रहा है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मतलब डाइल्यूट करने के लिए. कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है प्लाज्मा में. ठीक है. तो यहाँ से वाटर निकला. फिर कॉन्सेंट्रेशन 400 मिली ऑस्मोल से 600 हो गया क्योंकि पानी निकलते जा रहा है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा है अंदर में इलेक्ट्रोलाइट. फिर उसके बाद 800 फिर 900 1000 फिर यहाँ पे 1200 आ गया. तो ये हो गया हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट अभी बन चुका है. फिर जब ये ऊपर जा रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में तो ये 1000 हुआ क्योंकि यहाँ से अब फिर क्या हो रहा है NaCl बाहर आ रहा क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. 1000 फिर 900 फिर 800 600 फिर 400 फिर 300 फिर 200. ठीक है. ऊपर जाते गए NaCl बाहर आते जा रहा है तो अब कैसा हो चुका है हाइपरटोनिक बन चुका है. ठीक है. क्योंकि NaCl निकल रहा है तो बस पानी बचा तो अब कैसा हो गया हाइपरटोनिक. फिर उसके बाद ये डीसीटी में यहाँ से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि ADH काम कर रहा है. ये रीअब्जॉर्प्शन करवाया वाटर का डीसीटी से एंड ऑल्सो कलेक्टिंग डक्ट से. मेन बंदा तो ADH ही है ADH. तो फिर ये कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा. ओके. फिर उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल से जो आया जिसे कहते हैं वासा रेक्टा ये भी इसके चारों ओर घुमा हुआ है. तो फिर जब वासा रेक्टा इसमें
आ रहा ब्लड, तो ये यहाँ पे असेंडिंग लिम्बो लूप ऑफ हेनले में जब ये वॉसा रेक्टा है, तो यहाँ पे जब इसमें नीचे आ रहा तो 300 मिलियोस्मोल, फिर 400, यहाँ पे क्योंकि NaCl था तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ NaCl बाहर हुआ था, तो अब इससे NaCl इसमें आ भी रहा और H2O इससे बाहर भी आ रहा, ठीक है। तो ओवरऑल 300, 400, 600, 800, 900, 1000, 1200 तक आया, ये वॉसा रेक्टा है, ठीक है। फिर जब ये असेंडिंग वाले पार्ट में आए, ये था डिसेंडिंग वॉसा रेक्टा, अब असेंडिंग में जब आए तो यहाँ पे भी पानी बहुत ज़्यादा था, तो इससे NaCl निकल भी रहा है, कुछ पानी अंदर भी आ रहा है, कुछ बाहर भी जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे 1000 हुआ, फिर 900, 800, 600, फिर 400, फिर 300। आउटर मेडुला के फिर उधर जैसे ही कॉर्टेक्स में पहुँचते हैं तो वहाँ पे फिर से 300 मिलियोस्मोल हो चुका है, ओके। तो इसमें ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा में जितना NaCl पहले एब्जॉर्व करता है वॉसा रेक्टा, जब आ रहा था वॉसा रेक्टा असेंडिंग में, तो यहाँ से कुछ NaCl इसमें आया था, जितना NaCl पहले एब्जॉर्व करता है वॉसा रेक्टा उतना बाद में ऊपर जाते टाइम सब रिलीज़ कर दिया, कुछ लेके नहीं जाता यहाँ से, ठीक है। और इसमें इसके बदले में क्या हुआ, तो इससे क्या हो पाया, 20% एक्स्ट्रा वाटर इन ब्लड सेव हो पाया, ब्लड में 20% एक्स्ट्रा वाटर सेव हो पाया। NaCl आया था, कुछ से पानी निकल भी रहा था बट कुछ आ भी रहा था, तो यहाँ पे NaCl तो वापस ही करता बट पानी भी इसमें बहुत सारा आ रहा था, मतलब 20% एक्स्ट्रा H2O इन ब्लड हम लोग सेव कर पाए, ओके। तो यहाँ से सेव वाटर हो गया, ओके। ये इधर वाला काम तो हो गया सारा। जब ये ADH इस पर काम किया, फिर हाँ ये इनर मेडुला में इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है 1200 इनर मेडुला में, ओके। ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे भी नीचे आते आते इसका हो गया 1200 मिलियोस्मोल पर लीटर, ठीक है। कुछ कलेक्टिंग डक्ट से कुछ यूरिया भी जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, ओके। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसकी ऑस्मोलैरिटी हाई होती है किसकी वजह से, NaCl और यूरिया की वजह से, मेनली इसमें NaCl ही है, हाँ। ब्लड ऑस्मोलैरिटी 300 मिलियोस्मोल पर लीटर। ऑस्मो रिसेप्टर जब एक्टिवेशन होता तो हाइपोथैलेमस के पास मैच होता है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ADH, दैट्स व्हाई यहाँ पे ADH काम कर रहा था, ओके। यूरिया ये भी ऑस्मोलाइट है, लेटर पार्ट ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट पे यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स प्रेजेंट होता है, हैव एक्वापोरिन्स, H2O मूव करता है इस वजह से, ओके। और इस बीच को यहाँ पे कहते हैं रीनल इंटरस्टिशियम, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, पहला बाय हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय हाइपोथैलेमस, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, और डिक्रीज, सबसे पहला रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय हाइपोथैलेमस डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम कम रहता, या फिर ये कह लो डिक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और डिक्रीज आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, जब ये सब कम रहता देन उस टाइम ऑस्मो रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन होता, तो फिर मैसेज जाता हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस जो कि थर्स्ट सेंटर है, ये मैसेज भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट्स ADH ये क्या करवाता, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ DCT और कलेक्टिंग डक्ट, दैट्स व्हाई ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर हो जाता, ओके। डायोटिक सब्सटेंस एग्जांपल टी, कॉफी, अल्कोहल, ANF, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर हार्ट में ये होता है, जो कि टी, कॉफी डायूरेटिक सब्सटेंस टी, कॉफी, अल्कोहल, ANF हो गया, ठीक है। और फिर डायूरेसिस मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, ADH is also known as vasopressin, constriction of blood vessels, that's why BP increase हो गया, मतलब glomerular blood flow increase हो गया, GFR increase हो गया, ओके। सेकेंड RAS mechanism, RAS mechanism, renin angiotensin aldosterone system, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता और BP कम है, या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम है और GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, मैक्यूला डेंसा एक्टिवेशन हो गया, एक्टिवेट हो गया। हाँ, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, मतलब BP कम हो गया, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, मैक्यूला डेंसा एक्टिवेशन।
जब ये सब कम हो जाए तो फिर मैक्यूलर डेंसा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जेजी सेल्स एक्टिवेशन, जेजी सेल्स का एक्टिवेशन हो गया, सिक्रेट्स रेनिन, जेजी सेल्स एक्टिवेशन, जेजी सेल्स एक्टिवेशन, जेजी सेल्स एक्टिवेशन, जेजी सेल्स एक्टिवेशन, सिक्रेट्स रेनिन। यहाँ पे जेजी सेल्स का एक्टिवेशन हो जाता है, जेजी सेल्स एक्टिवेशन हो गया तो फिर जेजी सेल्स सिक्रेट्स रेनिन। रेनिन क्या करवाता है, एंजियोटेंसिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फॉर्म्ड बाय लीवर, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एंजियोटेंसिनोजेन फॉर्म्ड बाय लीवर, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। रेनिन एक्सट्रैक्ट करता है और इसे कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम्स ये सिक्रेट करता लंग्स, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम्स ये सिक्रेट करता लंग्स। एंड देन ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिनोजेन ये इनएक्टिव था, सिक्रेटेड बाय लीवर, लीवर सिक्रेट किया एंजियोटेंसिनोजेन। फिर ये इस पे रेनिन एक्ट किया एंड देन इसे कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। फिर उसका लंग्स सिक्रेट करता एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया, हाँ ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन ये लीवर बनाता है, लीवर फॉर्म्ड बाय लीवर, ओके। एंजियोटेंसिन 2 ये क्या है, इट इज़ अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो जैसे वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया तो बीपी इंक्रीज हो गई और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो रेट इंक्रीज हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो गया, ओके। एंजियोटेंसिन 2 या फिर ये दूसरा क्या काम करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स ये एल्डोस्टेरोन सिक्रेट का जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन ये सिक्रेट का जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम DCT, Na+ को ये रीअब्जॉर्ब कर रहा है, Na+ को रीअब्जॉर्ब किया तो मतलब 2K+ को ये बाहर करेगा, हाँ तो ये Na+ को एब्जॉर्ब किया, 2K+ को बाहर किया। तो फिर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आएगा क्योंकि ये Na+ को रीअब्जॉर्ब कर चुका है, पानी को रीअब्जॉर्ब कर चुका है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम भाई से मेंटेन करना है, कम है बॉडी में, ब्लड कम है, दैट्स वाई। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड H2O फ्रॉम DCT, देन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो गया, बीपी इंक्रीज हो गया, और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा और उसमें K+ एक्सक्रीशन इन यूरिन एंड K+ सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट, यस। और फिर तीसरा या तो ये हाइपोथैलेमस को पॉजिटिवली मैसेज भेजेगा एंड देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे हाइपोथैलेमस मैसेज भेजा, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एंड देन वो सिक्रेट करेगा ADH रिलीज इन ब्लड, ओके। तीसरा आता है बाय हार्ट। फिर हार्ट क्या काम करता है, जैसे ही बीपी इंक्रीज हो गया और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो गया तो इसे डर रहता है कहीं हार्ट का वॉल कैप रैप्चर ना हो जाए, मतलब टूट ना जाए। तो फिर एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सिक्रीट करता है ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, ये वैसोडायलेशन कर देता, वैसोडायलेशन जैसे कर देता तो फिर बीपी कम हो गया। देन सिक्रेट्स Na+ इन यूरिन, और ये क्या करता है, सिक्रेट्स Na+ इन यूरिन इन वेरी लेस अमाउंट और प्रोमोट डायूरेसिस, दैट्स वाई क्या करें, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर पाए, हाँ तो फिर ये डायूरेटिक है क्योंकि यूरिनेशन करवा रहा। एक्टिंग अगेंस्ट रास मैकेनिज्म, या फिर ये कह सकते हैं वैसे ये रास मैकेनिज्म को चेक करता है, ओके। एक क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और यूरिक एसिड, किसमें, और पेस्ट किसमें, तो ये पिकॉक में होता है, पैवो जिसे कहते हैं, ठीक है। लंग्स, रिमूवल ऑफ CO2 200 ml per minute एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। removal of CO2 200 ml per minute, removal of CO2 200 ml per minute and significant amount of water, ठीक है। liver, largest gland of our body, liver क्या है, largest gland of our body, bile pigment ये secrete करता है bilirubin and biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, drugs and vitamins। liver बाइल पिगमेंट बना रहा बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, ड्रग्स एंड वाइटामिन्स, ये सब डाइजेस्टेड वेस्ट के थ्रू बाहर आता, कम्स आउट ऑफ बॉडी एज फेसेस, ओके। स्किन यहाँ पे सूडोरिफेरस ग्लैंड है जिसे स्वेट ग्लैंड कहते हैं, सूडोरिफेरस ग्लैंड है स्किन में जिसे स्वेट ग्लैंड कहते हैं। प्राइमरी फंक्शन है इसका कूलिंग इफेक्ट करना, ठीक है। और वैसे ये
स्वेट के थ्रू NaCl यूरिया लैक्टिक एसिड और H2O भी निकलता है. स्वेट के थ्रू NaCl यूरिया लैक्टिक एसिड H2O, NaCl यूरिया लैक्टिक एसिड H2O भी रिलीज होता. ओके, स्किन सोडोरिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट होता है. स्वेट ग्लैंड प्राइमरी फंक्शन इसका कूलिंग इफेक्ट है, ठीक है. बट स्वेट के साथ साथ NaCl यूरिया लैक्टिक एसिड और H2O भी बाहर आता है. ओके, सेबेसियस ग्लैंड वो था सुडोरिफेरस ग्लैंड था स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन. ओके, अब देखते हैं ये सेबेसियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है. दे सिक्रीट सीबम ऑयल to provide protective oily covering. It helps in removal of steroid. Hydrocarbon and waxes. It helps in removal of, ये सीबेसियस ग्लैंड का काम है. इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ स्टेरॉयड, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस. ओके, HDL ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल से लीवर के पास लेके जाता है एंड फॉर्म बाइल सॉल्ट. हाँ, कोलेस्ट्रॉल का कुछ काम है, जैसे हो गया फॉर्म स्टेरॉयड हार्मोन, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर्म विटामिन, फॉर्म बाइल सॉल्ट. ओके, सलाइवा में भी एंटोवेस्ट compounds है. Antivests are released in the form of saliva also. Okay, यूरिन का कलर होता है लाइट येलो कलर, वाटरी फ्लूइड, यूरोक्रोम प्रेजेंट है क्योंकि इसमें, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ये स्लाइटली एसिडिक है, pH 6.0, ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हो गया 1.001 to 1.035. 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एलिमिनेटेड आउट पर डे. इसे कहते हैं यूरियोटालिक हम लोगों को कहते हैं. 1 to 1.5 लीटर पर डे, जिसमें कि 95% वाटर रहता है, 5% इलेक्ट्रोलाइट में हो गया यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, K+, H+ एटसेट्रा. ओके, अब देखते हैं डिसऑर्डर. यूरेमिया माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी. यूरेमिया क्या है, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड. यूरेमिया माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ठीक है. यहाँ पे हीमोडायलिसिस क्या है, यूरेमिया माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड. ओके, हीमोडायलिसिस ये आर्टिफिशियल किडनी है. हीमोडायलिसिस ये क्या है, आर्टिफिशियल किडनी. ओके, यहाँ तो क्या, यहाँ पे रीनल वेन और ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन और इधर है रीनल आर्टरी, ठीक है. ये रीनल आर्टरी से ब्लड लेते हैं, रीनल आर्टरी से ब्लड लिए, इसमें हैपरिन डालें एंटीकोगुलेंट, इसे 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले लाए टेम्परेचर टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल ग्रोथ. ओके, फिर इसके बाद इसमें हैपरिन ऐड किया, एंटीकोगुलेंट है जो कि हैपरिन ऐड करने के बाद जब इसे फैलोपियन ट्यूब में डाले, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है, ये हो गया डायलिसिंग यूनिट में इसे डाले और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है. फैलोपियन ट्यूब ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट पास अक्रॉस. ओके, तो यहाँ से बस यूरिया पास हो पा रहा है और इधर यहाँ पे फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे आते जा रहा है. ओके, और यहाँ पे इससे यूरिक एसिड, यूरिया, सब नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज हो रहा है. यहाँ पे डायलिसिंग फ्लूइड जो होता है कॉम्पोजिशन सेम एज डेट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड प्लाज्मा प्रोटीन. तो फिर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है इसमें, तो ये बाहर आ रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट. ओके, थ्रू ऑस्मोसिस एंड देन फिर इसके बाद जब नीचे आ जाता है तो इसको साइड में एक्यूमुलेट कर लेते हैं. यूज्ड डायलिसिंग यूनिट जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको साइड में एक्यूमुलेट कर ले, ठीक है. और फिर इसे बाद में वापस से वार्म किए और बॉडी टेम्परेचर पे लाए एंड देन एंटी हैपरिन इसमें डाले, जो एंटी हैपरिन डाले एंड देन इसे रीनल वेन में डाले, फिर डाले. रीनल आर्टरी से लिए थे, अब वेन में डाले क्योंकि अब वेन जाएगा कहाँ, हार्ट के पास, फिर उसके बाद पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उससे. ओके, एक्यूट किडनी फेलियर और रीनल फेलियर भी इसे कहते हैं. एक्यूट किडनी फेलियर और रीनल फेलियर, इसमें क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज ओनली ऑप्शन. चाहे ट्विंस का ले लो, चाहे सिबलिंग, पेरेंट्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स का डोनर का किडनी होना चाहिए. ओके, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम देखते हैं, टी सेल्स इसे कहते हैं. गिव इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, साइक्लोस्पोरिन. ओके, रीनल फेलियर इट इज़ अ कंडीशन. रीनल फेलियर क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन व्हेन बोथ आवर किडनी, रीनल फेलियर it is a condition when both our kidney stop working
चाहे मर्गडी पॉइजनिंग हो या फिर अनकंट्रोल्ड ट्यूबरक्लोसिस या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर या फिर हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ओके, फिर उसके बाद रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन को कहते हैं। रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन को कहते हैं। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ ऑक्सलेट, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट का कहते हैं रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ओके, ग्लूकोज यूरिया presence of glucose in urine, ketonuria, presence of ketone bodies in urine, also ketonuria also released during starvation। ठीक है, और ये दोनों ग्लूकोज यूरिया और कीटोन्यूरिया अगर प्रेजेंट हो तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस सुगरी। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस इसे टेस्टलेस डायबिटीज भी कहते हैं ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, or low secretion of ADH in the body, due to under secretion of ADH in the body or low secretion of ADH in the body, extreme thirst हो due to under secretion of ADH या फिर ये कह लो due to low secretion of ADH का कम secretion हो रहा मतलब डायूरेसिस ज़्यादा हो रहा, ओनली वाटर रिलीज हो रहा, एक्सट्रीम थ्रस्ट लग रहा, इसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, हम देखते हैं अफेक्ट ऑफ रीनल फेलियर ऑन बॉडी, या तो यूरेमिया हो रहा, यूरेमिया क्योंकि किडनी ही फेलियर हो चुका है तो यूरेमिया, या फिर क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो चुका है, क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो गया है, और एसिडोसिस, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड बिकम्स एसिडिक, इसे कहते हैं एसिडोसिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एनीमिया किडनी प्रोड्यूसेस erythropoietin हार्मोन विच हेल्प्स इन आरबीसी प्रोडक्शन इन रेड बोन मैरो। ठीक है, ये कहता है इन केस ऑफ रीनल फेलियर erythropoietin hormone is not produced, that's why RBC production decreases and the human suffer from anemia. Yes, anemia is a condition where oxygen carrying capacity of blood reduces. Anemia is a condition where oxygen carrying capacity of blood reduces. Anemia is a condition where oxygen कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूसेस। हाँ, क्योंकि आरबीसी नहीं उतना बन रहा तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो कैरी करता है तो फिर वो भी नहीं बन पा रहा है, डेट्स व्हाई एनीमिया इज अ कंडीशन वेयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूसेस। ओके, अब देखते हैं ओलिगोयूरिया एंड एनूरिया। ओलिगोयूरिया वेरी लेस यूरिन प्रोडक्शन, ओलिगोयूरिया कहते हैं। ठीक है, एनूरिया नो यूरिन प्रोडक्शन, एनूरिया नो यूरिन प्रोडक्शन। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर या तो हीमोडायलिसिस, इट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। किडनी ट्रांसप्लांट ये परमानेंट सॉल्यूशन। ओके, किडनी प्रोड्यूस कैल्सीट्रायोल, जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, और व्हेन किडनी फेलियर नो कैल्सीट्रायोल विल बी प्रोड्यूस्ड एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नॉट टेक्स प्लेस। ओके, फिर डायलिसिस मशीन की तरह जब करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि कैल्सीट्रायोल आ जाएगा। ओके, यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस रिजल्ट इन नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, नहीं वो तो उससे आसानी से हट जाता। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस फॉस्फेट आयन, नहीं वो भी उससे हट जाता। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हाँ ये सही है। रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्ट्स, हाँ ये सही है। सी एंड डी आर करेक्ट। ओके, दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।